practical session on Greek option trader. फ्रेंड्स, ये वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है कि हम मार्केट के अंदर में आफ्टर लर्निंग ऑल दिस ग्रीक what type of problems we are facing or what type of opportunities are there in market as of now. तो उसको अपन आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर के दौरान अपन ने क्या क्या चीजों को पढ़ा था. तो हमने पढ़ा था उस समय पे ऑप्शन प्राइसिंग क्या है, यस और नो. याद है ऑप्शन प्राइसिंग कुल 5 चीजों को मिक्स करो तो ऑप्शन का प्रीमियम बनता है, यस और नो. एवरीवन एवरीवन एवरीवन. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो अपने ऑप्शन प्राइसिंग पढ़ा था. उसके बाद में अपने इंट्रोडक्शन टू ग्रीक्स पढ़ा था. इंट्रोडक्शन टू ग्रीक्स के अंदर में अपन ने देखा था डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड रो. हमने समझा था डेल्टा इज द ग्रीक ऑफ स्पॉट, वेगा इज ग्रीक ऑफ कमॉन कमॉन कमॉन. किसका ग्रीक है वेगा? एवरीवन एवरीवन एवरीवन. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड. वेगा इज द ग्रीक ऑफ वॉलेटिलिटी. यदि मार्केट में बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हों और वॉलेटिलिटी 1% चेंज हो जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा ये बताता है वेगा. यस और नो एवरीवन. वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड. यस. देन T for time and T for theta and R for rate of interest and R for rho. Very good. And the gamma was the second line Greek. तो gamma Greek था डेल्टा का कि यदि मार्केट में 1 रुपया स्पॉट में चेंज हो तो प्रीमियम कितना चेंज होगा यह बताता था डेल्टा. और डेल्टा खुद कितना चेंज होगा यह बताता था गामा. When other factors remain constant and if spot changes by ₹1, then option premium will change as per its delta. Yes or no? And delta will change as per its gamma. Very good very good very nice very nice. बहुत अच्छे. यस. तो ये अपने ग्रीक समझे थे. उसके बाद में हमने ये देखा था कि जब हमारा पोर्टफोलियो डेल्टा लॉन्ग होता है, इफ माई पोर्टफोलियो डेल्टा इज लॉन्ग दैट मीन्स आई एम बेरिश. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? कम ऑन कम ऑन कम ऑन. इफ माई पोर्टफोलियो डेल्टा इज लॉन्ग. वेरी नाइस संजीव जी. वेरी गुड. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड. यस यस यस. So that means when my portfolio delta is long, that means I am bullish in the market. When my portfolio delta is short, that means I am bearish in the market. Very good. Very nice, Ashwini ji. Very good. Okay. The same way, if my portfolio theta is long. Very good, Mr. Prasad. My portfolio theta is long. What does it mean? Come on, friends. Can I say that if my portfolio theta is long, Sanjeev ji, that is wrong. So if my portfolio theta is long, that means if time passes, it will make money in my account. Yes or no? Yes or no? Very good. Very good. Very good. So time passes will make money or time will run in favor of me. Yes or no? Very good. Very good. Or if my portfolio theta is short, that means I will
pay time value indirectly. Yes or no, my dear friends? Very good. Very nice. Very nice. Very good, Mr. Jala. Very nice. Very nice. Okay? Very good. Now, delta, theta, then if my portfolio vega is long, so I want volatility to go up. Yes or no? I want volatility to go up. If volatility will rise, I will make money, and if volatility will fall, I will incur loss. And similarly, if my portfolio vega is short, that means I am bearish. See, I am writing all the terms in different ways so that you can correlate each and everything. I am writing here vega is long, then I am writing here portfolio vega is short. Both the things are same. Okay, vega means portfolio vega we are talking about here. And portfolio vega is short. So I am bearish in terms of volatility. मैं bearish हूँ, लेकिन मैं volatility पे bearish हूँ. यहाँ पे मैं जो bearish हूँ, तो bearish in spot. Yes or no? Very good. Very nice. Very nice. So delta. And now, most important term, that is gamma. So, when I am gamma short, what does it mean? It means that movement in spot will incur risk. Yes or no? If spot moves and if I am having gamma short position, it will incur loss. Yes or no? Or I can say this is a range bound strategy. When I am doing gamma short, I want market to stand over there only. Very good. Very nice line, Sanjeev ji. Very good. Sanjeev ji ने लिखा है increase in spot will make delta go short. That is perfectly correct. That means if spot rises, I will become delta short. And if spot falls down, I will become delta long. Yes or no? Very good. And again I can say I will earn time value. अगर मैं गामा शॉर्ट हूँ तो मैं टाइम वैल्यू कमाऊंगा. एंड सिमिलरली इफ आई एम गामा लॉन्ग, दैट मीन्स I want movement in market. Yes or no, my dear friends? Very nice. Very good. Very good. Okay, now next point. ये हमने पढ़ा था डेल्टा गामा वेगा थीटा किस तरीके से काम करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है. देन आफ्टर वी रियलाइज वी स्टार्टेड टू लर्न स्ट्रेटेजीज. उसके अंदर में अपन ने पढ़ा था शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजीज. शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजीज में अपन ने ये देखा था कि किस तरीके से हम ऑप्शंस को बेचना चाहिए. तो हाउ टू सेल ऑप्शंस, हाउ टू न्यूट्रल डेल्टा. यस और नो? याद है? वेरी गुड. वेरी नाइस. हाउ टू न्यूट्रल डेल्टा. देन हाउ टू हेज द रिस्क. उसके बाद में अपने देखा था हेजिंग के लिए कि ओटीएम वगैरह को खरीद के भी हम हेज कर सकते हैं. डेल्टा को न्यूट्रल करके हम हेज कर सकते हैं. हम हेजिंग के लिए सिंथेटिक फ्यूचर से डेल्टा न्यूट्रल कर सकते हैं. कॉल से, पुट से, फ्यूचर से, इक्विटी से डेल्टा न्यूट्रल कर सकते हैं. उसके बाद में हमने देखा था रिस्क बिहाइंड दिस स्ट्रेटेजी. उसमें अपन ने समझा था कि मार्केट गैप अप गैप डाउन हो या वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो हमको रिस्क होता है. गैप अप गैप डाउन का रिस्क हमको एक्चुअल रिस्क फील हो रहा था. वॉलेटिलिटी के बढ़ने से हमको ये पता था कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा. यस और नो? वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो थीटा भी बढ़ता है. यस और नो? वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी नाइस. वेरी नाइस. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं फटाफट एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको. हाँ, यहाँ पे मैंने लर्न ऑप्शन बिहेवियर ओपन किया और लर्न ऑप्शन बिहेवियर में
मैं कॉलम 30 ओपन करके 8,000 रुपीज स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक 8,000, 30% की वॉल पे मैंने 1 महीने का ऑप्शन ओपन किया, तो कॉल का प्रीमियम आया 274.41. इज इट करेक्ट और नॉट? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन. वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, वॉलेटिलिटी के सामने 5% वॉलेटिलिटी को बढ़ा दिया. तो फर्स्ट कॉलम पे वॉलेटिलिटी है 30%. कैन यू सी दिस? फर्स्ट कॉलम पे वॉलेटिलिटी है 30%. सेकेंड कॉलम पे वॉलेटिलिटी है 35%. यस और नो माय डियर फ्रेंड? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने वॉलेटिलिटी को भी कंटिन्यूअसली चेंज किया, जिससे हम उसका इम्पैक्ट देख सकें कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है. यस, ओके, अब ठीक है. या तो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट देखा. अब मुझे यहाँ पर ये देखना था कि जैसे ही मार्केट की वॉलेटिलिटी चेंज होती है, वॉलेटिलिटी बढ़ी, तो वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा. यस और नो? वॉलेटिलिटी के बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा. यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और जैसे ही ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा तो तुरंत ही थीटा में क्या चेंज हो रहा है वो हमें देखना है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. जो थीटा पहले 4.57 का था, वॉलेटिलिटी के बढ़ने के कारण वो थीटा क्या हो गया, 5.33. यस और नो? तो कई बार हम जब शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजीज को चलाएंगे तो उस समय पे मार्केट की यदि वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो इट विल इनकर लॉस. लेकिन साथ साथ में हमारा थीटा भी लॉन्ग है, क्योंकि हमने ऑप्शन बेचा हुआ है, तो थीटा भी हमारा बढ़ जाएगा. यदि आपने 1000 क्वांटिटी बेची होती तो यहाँ पे आपका थीटा 4570 होता, जबकि यहाँ पे वही थीटा 5330 होगा. तो मुझे थीटा के दाम से वापस पैसा मिल जाएगा, उसमें मुझे टेंशन नहीं है. लेकिन गैप अप गैप डाउन हो गया, मेरा डेल्टा न्यूट्रल नहीं हुआ, तो वहां पे मुझे रिस्क है. तो वो रिस्क हम लेके चल रहे होते हैं. तो ये हमने देखा था शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजी. उसके बाद में हमने देखे थे रेशियो स्प्रेड. रेशियो स्प्रेड में हमने देखा था प्राइस रेशियो, जहाँ पे हम प्रीमियम को मैच करते हैं. डेल्टा रेशियो, जहाँ पे दो डेल्टा को मैच करके हम स्ट्रेटेजीज को चलाते हैं, जिससे वो डेल्टा न्यूट्रल ही रहता है रेशियो स्प्रेड. उसके बाद में हमने देखा था वेगा रेशियो. ये नॉर्मली आर्बिट्राजर्स को ज्यादा काम का होता है, जिनको वॉलेटिलिटी का फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, तो वहाँ पे अपन ने वेगा रेशियो को देखा था. तो प्राइस रेशियो में प्रीमियम न्यूट्रल होता था, डेल्टा रेशियो में डेल्टा न्यूट्रल होता था, और वेगा रेशियो में वेगा न्यूट्रल होता था. और फिर अपन ने उनके रिस्क रिटर्न देखे थे और उनके लिए देखा था कि हमको कैसे इसको मैनेज करना है. उसके अलावा अपन ने मार्केट के अंदर में बुलिश स्ट्रेटेजीज देखी कि जब हम मार्केट के अंदर में अलग अलग टाइप से डेल्टा को लॉन्ग रखते हैं, चाहे बुल कॉल स्प्रेड हो, बुल पुट स्प्रेड हो, या फिर रेशियो स्प्रेड के थ्रू कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड बैक स्प्रेड, पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड बैक स्प्रेड बनाए, तो जिससे हम डेल्टा को लॉन्ग कर सके, तो बुलिश स्ट्रेटेजीज बनती थी. उसके बाद अपन ने देखा था बेरिश स्ट्रेटेजीज. तो बेरिश स्ट्रेटेजीज में अपन ने समझा था कि कैसे मार्केट के अंदर में हम डेल्टा शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, उसमें क्या रिस्क आती है और उनके रिस्क को कैसे अपन नलीफाई कर सकते हैं. तो बुलिश, बेरिश. देन वी लर्न बटरफ्लाईज. बटरफ्लाईज में अपन ने ये देखा था कि कब मार्केट के अंदर में हम एकदम लिमिटेड रिस्क में काम करना हो तो हम कैसे काम कर सकते हैं. ये स्ट्रेटेजी भी टाइम का पैसा कमाती है और उसके बावजूद आपको लिमिटेड रिस्क में रखती है. इसका एक्सटेंडेड वर्जन अपन ने देखा था कॉन्डोर. उसके बाद अपन ने देखा था कैलेंडर स्प्रेड, या रेशियो फ्रंट स्प्रेड बैक स्प्रेड. इसी में ही आ गया मिस्टर आनंद, है ना. रेशियो है ना, ये तीनों के तीनों रेशियो के अंदर में फ्रंट स्प्रेड और बैक स्प्रेड तो आएंगे ही. यस और नो? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रंट स्प्रेड और बैक स्प्रेड. दिस इज लाइक लॉन्ग और शॉर्ट, है ना. वेरी गुड, वेरी गुड. ये देखा. उसके बाद में अपन ने देखा था लो डेल्टा शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजी, जो आप लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, जिसमें कम रिस्क में अपन काम कर सकते हैं. उसके बाद में अपन ने देखा था बुक बिल्डिंग, जो थोड़े से हाई रिस्क टेकर लोगों के लिए काम का है, लेकिन उसके अंदर में रहता लिमिटेड लॉस है. हालांकि अब तो 75 का लोड होने के कारण और ज्यादा वो क्वांटम बढ़ जाएगा. तो बुक बिल्डिंग स्प्रेड था. देन वी लर्न डिस्पर्जन थियरी. डिस्पर्जन थियरी में अपन ने देखा था कि कैसे इंडेक्स की वॉलेटिलिटी और स्टॉक की वॉलेटिलिटी के बीच में भी अपन
काम कर सकते हैं। जब वॉलेटिलिटीज के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो इंडेक्स और स्टॉक में, तो अपन एक ऑप्शन को लेंगे और दूसरे ऑप्शन को बेचेंगे और उनके बीच में टाइम का पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो दैट वाज डिस्पर्जन थियरी। उसके अलावा अपन ने ओपन इंटरेस्ट देखा था। आई होप मैंने सारे टॉपिक को कवर कर दिया है, और नहीं तो मैं आपके साथ में एक बार इसको भी खोलते हैं अपन finideas.com, और finideas.com में आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर, हाउ टू आइडेंटिफाई, मिस्टर प्रसाद का क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मार्केट ऑन बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट है, चलो अपन अभी इसको समझेंगे, है ना। जस्ट सेकेंड, पहले एक बार अपन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज देखी थी। तो अपन ने ऑप्शन प्राइसिंग देखा था, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में मीनिंग, फिर रिलेशनशिप देखे थे। उसके बाद में कैसे उनको सॉफ्टवेयर पे यूज करने का, ऑप्शन ग्रीक कैलकुलेटर, फिर डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा। देन उसके बाद में जॉइंट इम्पैक्ट देखे थे ग्रीक के, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थे। उसके बाद में शॉर्ट गामा स्ट्रेटेजीज को अपन ने देखा था, लो डेल्टा शॉर्ट गामा, लॉन्ग स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेंगल शॉर्ट स्ट्रेंगल, देन हेजिंग, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, then call ratio, put ratio, back spread and ladders, then jobbing, फिर वेगा रेशियो स्प्रेड। उसके बाद में बटरफ्लाई, कॉन्डोर, ओके, कैलेंडर, लॉन्ग शॉर्ट, पुट कॉल पैरिटी था, राइट, एक ये पॉइंट छोड़ा अपन ने, पुट कॉल पैरिटी देखा था, टिक टेक देखा था, बुक बिल्डिंग, करेंसी, सिग्मा रेंज, डिस्पर्जन, ओपन इंटरेस्ट, ग्रीक ऑप्शन बिहेवियर। ओके, तो नाउ अपन इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया ना, यहाँ पर मैं पुट कॉल पैरिटी और लिख देता हूँ ताकि, ओके, हाँ, अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का क्या लॉजिक है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को ना मिस्टर प्रसाद अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप मेरी हेल्प करना थोड़ा सा। अपन इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं यहाँ सेंड कर देता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है, how to identify type of market on basis of open interest theory and volume. I mean, bullish, bearish, volatile, range bound or sideways, consolidated. And then please help me in understanding this so as to apply a particular strategy maybe at the end of session. Okay? Okay. अब ना पहले अपन पहला पॉइंट यूज करते हैं कि पहले तो कैसे पता चलता है। तो पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज an indicative factor, okay, so it will give you indication, or indication means probability, but I am very sure that we are going to get probability. अब मैं कैसे करूंगा ना इसको, या संजीव जी, दिस इज नॉट फुल प्रूफ, है ना। अब मैं मिस्टर प्रसाद, क्योंकि आपका क्वेश्चन है, तो आप ही मेरे को कोई एक मंथ मेच्योरिटी बोलो, जो मेच्योरिटी हमको किसी को नहीं पता है। आप एक मंथ की मेच्योरिटी बोलो, अपन उसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं, तो अपने को आइडिया आएगा कि क्या हो रहा है। आप कोई भी एक मेच्योरिटी बोलो, करंट मेच्योरिटी मत बोलना, क्योंकि वो अपने पता है। कोई भी एक मंथ, फास्ट इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था। अपन निफ्टी को ओपन करेंगे उस मंथ के लिए, जल्दी बोलो। ये मंथ नहीं चलेगा मुझे, क्योंकि ये मंथ अपने सबको आइडिया है, अभी याद है अपने को। कोई भी एक मंथ। अच्छा, मैं उसके पहले रूल्स बोल देता हूँ। क्या रूल्स के ऊपर अपन चेक करेंगे? जहाँ पे कॉल का हाईएस्ट ओआई होगा, वी विल ट्रीट इट एज रेजिस्टेंस। जहाँ पे पुट का हाईएस्ट ओआई होगा, वी विल ट्रीट एज सपोर्ट। ओके। अच्छा, दूसरा, मान लीजिए मार्केट में 7800 के कॉल का ओआई हाईएस्ट है, तो मैं बोलूंगा कि, और 78 के कॉल का जो प्रीमियम है ना, वो लगभग चल रहा है 100 रुपए मान लो, तो मैं बोलूंगा कि 7800 प्लस 100, दैट मीन 7900 इज द रेजिस्टेंस ऑफ मार्केट। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि 7800 में भी 100 रुपए का प्रीमियम लगा हुआ है लोगों का, तो सचमुच में वो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? पहले तो ये क्यों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस बनता है?
मार्केट चल रहा है मान लो अभी 7500, 78, फिर यहाँ पर मैंने यहाँ अलग अलग स्ट्राइक डाली 75, 76, 77, 78, मान लो ऐसे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल हो गया ये 74, 73। ये है ना, यहाँ पे मैं कॉल लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं पुट लिख रहा हूँ, और ओपन इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लैक्स। ये मान लो यहाँ 15 लैक्स है, यहाँ पे 25 लैक्स है, यहाँ पे 40 लैक्स है, यहाँ पे 60 लैक्स है, यहाँ पे 50 लैक्स है, और यहाँ पे 90 लैक्स है। ऐसा ओपन इंटरेस्ट है OI इन लैक्स। अब यहाँ पे और 7900 उसके बाद और 8000, 79 का 60 लैक्स है और इसका 70 लैक्स है, ऐसा है। तो ये हाईएस्ट OI रख रहा है यहाँ पे, ये हाईएस्ट OI रख रहा है। तो मैं बोलूंगा कि भैया ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, और ये रेजिस्टेंस को एक बात तो मैं डाल सकता हूँ जो प्रूवन आएगी, वो ये है कि जब तक ये ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट नहीं होगा ना, तो मार्केट ज्यादा टाइम तक ऊपर इससे ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। मार्केट को इससे ऊपर जाने के लिए इस OI को कम होना ही पड़ेगा और ऊपर के लेवल पे OI को आना पड़ेगा, तो मुझे इंडिकेशन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस मिस्टर प्रसाद और एवरीवन? ओके, 26 नवंबर यू सेड नवंबर means you are talking about 2014. yes, okay, so यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ कि भाई ये 78 पे OI हाईएस्ट है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिनटेस्ट से मुझे कोई मैच्योरिटी इन्होंने तरीके से बताया नहीं अभी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि 2014 नवंबर, चलो तो अपन नवंबर में चलते हैं, इनको जो इंटरेस्ट है उसी में। देखो ये नवंबर की मैच्योरिटी आपके सामने में अपन यहाँ पे ओपन कर रहे हैं इसको, ओके, और यहाँ पे मैं OI ओपन कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मेरे सामने इस तरीके से आ गया, ये डेसिमल्स को मैंने हटा दिए, ओके, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अब, मार्केट जो है, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट चल रहा है 8359। कैन यू सी दिस? अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, और ताकि शुरुआत से ये सेकेंड में, ओके, अभी है ना यहाँ पे आप आना 31 अक्टूबर, सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा, उससे अगला दिन मार्केट में 3 नवंबर है। मैं आपके साथ साथ इसको ट्राई कर रहा हूँ। 3 नवंबर को मार्केट 8359 चल रहा है, यस और नो मिस्टर प्रसाद? वेरी गुड। अच्छा, मार्केट का एवरीवन यहाँ दिख रहा है ना 8359, सबसे ऊपर में फ्यूचर का प्राइस आता है। 8359 चल रहा था 3 नवंबर 2014 को, ओके। मार्केट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ था? ये कॉल की टेबल है और नीचे पुट की मिलेगी। तो मैं एक और काम अच्छा इजी कर सकता हूँ, इसको कंट्रोल ए, ताकि जब आपके पास ये जाएगा ना टेबल, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में मिलेगी। और द सेम वे कंट्रोल ए, और यहाँ पे मैंने पुट का डेटा भी रख दिया है, ओके। अब ये एक्सेल पे इसलिए रख दिया मैंने क्योंकि अपने को एक्सेल में ज्यादा इजीली आपके पास में ये एक्सेल आ जाएगी रेफरेंस के लिए, तो आपको हेल्प मिलेगी वहाँ पे। और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट सब तरीके से आ जाए इसके लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, हालांकि आपको इम्पैक्ट से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक एक कॉलम को आपके सामने ओपन करूंगा। इसको और छोटा करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। अब मेरे ख्याल से काम हो जाएगा, और एक काम और करना पड़ेगा मुझे, इसको यहाँ से अपन इसको भी हाइड कर देते हैं, ये मिनिमाइज रिबन, तो और बड़ा हो गया ये एक्सेल। अच्छा, ये जो है इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऊपर में डेट आ जाएगी, ऊपर में डेट आ ही रही है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका ये जो स्ट्राइक वाला जो कॉलम है ये बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ। ये मेरा जस्ट 2 मिनट है फ्रेंड, बहुत मजा आएगा आपको इस पॉइंट को समझ के। और इनको भी मैं छोटा कर दिया, डन। और अब मैं यहाँ पे इसको डेटा या जस्ट सेकेंड नाउ, यस, अब मैंने इसको यहाँ फ्रीज कर दिया।
ताकि मुझे यहाँ पे स्ट्राइक दिखती रहेगी। अब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो पहला तो थर्ड था, यहाँ से थर्ड से शुरू कर रहे हैं अपन। थर्ड को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो ये 40 लाख यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यस और नो? एवरीवन ये 40 लाख, हाँ थर्ड, ये 40 लाख हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, कम ऑन। तो मैंने इसको बोल्ड किया और सिंपली पुट के अंदर में यहाँ पे मुझे ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 55 लाख, यस और नो? 8,000 पे, यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना, बहुत मजा आएगा। अच्छा क्या क्या पॉइंट्स आ गए हैं कि मैंने पढ़ा नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी सबको? मिस्टर प्रसाद सर कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय एक्सेल के। मैं एक्सेल ही दिखा रहा हूँ आपको और कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। गॉट इट? एक्सेल दिख रहा है अभी आपको? यस, वेरी गुड, ओके। तो 8,000 का पुट, 8,000 पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, सो दैट आई विल कॉल इट कि भाई ये आज का सपोर्ट है, ये मार्केट में सपोर्ट है, यस और नो? वेरी गुड, वेरी नाइस। इंसर्ट कमेंट यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये सपोर्ट है, याद रहेगा आपको। और इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रेजिस्टेंस है। डन, ओके। सो मार्केट शुड रिमेन बिटवीन 8,500 to means 8,000 to 8,500. मार्केट शुड रिमेन बिटवीन दिस रेंज। तो भाई मार्केट 8,359 है तो यहीं पे चलेगा। अगले दिन मार्केट 8,388 आया, मिस्टर प्रसाद वापस ओपन इंटरेस्ट यहीं पे ही हाईएस्ट है कॉल पे, वापस ओपन इंटरेस्ट पुट में भी यहीं पे ही हाईएस्ट है, मार्केट रेंज में ही रहना चाहिए। अगेन मार्केट 8,392 आया, फिर से ओपन इंटरेस्ट इधर ही हाईएस्ट है, पुट के अंदर में भी यहीं पे ही हाईएस्ट है, मार्केट यहीं पे रहना चाहिए इसी रेंज में। 8,385 आया। आर यू गेटिंग दिस? ये आपको ये बता रहे हैं कि मार्केट शुड रिमेन बिटवीन 8,000 to 8,500। आर यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड? वेरी गुड। देखते जाते हैं उसके आगे क्या होता है, कहाँ पे कुछ 8,399 है अभी भी मार्केट, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल में भी यहीं पे ही है 51, पुट के अंदर में भी यहीं पे ही है। अभी 50 यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 57, 8,000 पे ही है। उसके आगे वापस अभी भी कॉल के अंदर में 55 पे ही है, पुट पे 56 पे ही है, मार्केट 8,413 चल रहा है। मार्केट 8,413 चल रहा है, वो मुझे इनडायरेक्टली समझा रहा है कि 8,500 शुड बी अ गुड रेजिस्टेंस। और मैं ये मान रहा हूँ 12-13 नवंबर होगी, मतलब ऑप्शन का भाव जो है लगभग 100-125 रुपए चल रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट 8,590 और 8,600 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ अगला दिन? तो अगले दिन मार्केट 8,384, फिर से यहीं पे ही वो रेजिस्टेंस है, मार्केट वापस थोड़ा नीचे ही है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इधर ही चल रहा है 83 ऑन 12। अच्छा मैंने कुछ गलत देखा है? 83, ओके 83 हाईएस्ट है, राइट। तो 83 हाईएस्ट है, दैट इज अ गुड इंडिकेशन कि अब नीचे की साइड में सपोर्ट मेरे को 83 पे मिलेगा। वेरी नाइस संजीव जी। यहाँ पे क्योंकि एक एक्सेल में डाला है तो कुछ फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे फास्ट में। ओके गुड। तो वापस ये बता रहा है कि 83 से लेके 85 के बीच में आपका मार्केट रहेगा। अगले दिन मार्केट 8,384 आया, 8,384 आया अगेन। अच्छा एक चीज और देखना है, वेरी गुड। अगेन एक चीज और देखना है, एकदम कट टू कट वाले ओपन इंटरेस्ट हो ना आजू बाजू नजदीक, तो आपके 1-2 रेजिस्टेंस लेवल या 1-2 सपोर्ट लेवल बनते हैं। पर फिलहाल आप अभी भी मान के सकते हो कि यहाँ पे 53 और 52 है,
तो ये इनडायरेक्टली बता सकता है 82 तक भी आपका सपोर्ट लेवल चल रहा है, और ऊपर में तो 85 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ ही है। तो वापस यही लेवल है। फिर चलते हैं अगले दिन। अगले दिन आए तो मार्केट 8415। मैं खुद भी आपके साथ में एक एक दिन खोल रहा हूँ ताकि मुझे भी और कॉन्फिडेंस बढ़े उसके अंदर में। और इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, अगेन अब जो है अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया पुट ऑप्शन पे, क्योंकि ये 59 है, उसके नीचे 53 52 है। तो 83 है तो इसका मतलब 82 से नीचे बाजार नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो तभी जाएगा जब ये जो यहाँ पे जो ये ओपन इंटरेस्ट है ये कम हो जाए, और यहाँ पे या उससे नीचे वाले लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाए, तभी नीचे जाएगा। और ऊपर की साइड में भी कॉल में ये 55 जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो भी बता रहा है कि 85 बाजार का एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद में मार्केट वापस 8452, अभी भी 85 प्लस प्रीमियम होगा 100 रुपए का, तो ज्यादा से ज्यादा 86 ऊपर का रेजिस्टेंस है, और नीचे के अंदर में अब 83 सुपर रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट लेवल बन गया। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? ओके, मेरा वॉइस बाकी सबको एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है? अश्विनी जी, मिस्टर प्रभु, रितेश जी, संजीव जी, वॉइस मेरा क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ओके ओके। प्रसाद जी, आप अपने एंड पे थोड़ा सा कुछ चेक करो, बाकी जगह पे वॉइस एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है ना? ओके, चलो उसके आगे चलते हैं। फिर अगले दिन मार्केट 8454, अगेन वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 83 पे है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 85 पे है। अगले दिन वापस 84, अच्छा फिर से फिर 8413 वही लेवल चल रहा है। यहाँ पे अभी तक कुछ भी ब्रेकआउट आया नहीं है, कहीं पे भी शिफ्टिंग का जरूरत नहीं पड़ा है। वापस 8424, और ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट है वो 83 85 पे। देखो कितना अच्छे से ये मार्केट का इंडिकेशन दे रहा होता है कि हम इस रेंज के बीच में रहेंगे। और अभी जैसे कहीं शिफ्टिंग होगा ना तो आपको आइडिया आएगा, आपको तुरंत पता चलेगा ये अच्छा आप कुछ होने वाला है। अगेन मार्केट नेक्स्ट डे 8489 है। मेरा कॉल का ओपन इंटरेस्ट पहले के कंपैरिजन में घटा है 51, लेकिन है तो अभी भी हाईएस्ट थी। तो मैं एकदम अभी भी यही कहूंगा कि मार्केट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8489 है। 8500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल 85 पे रहेगा। एकदम नजदीक हूं मैं रेजिस्टेंस के। और सपोर्ट के साइड में 84 और 83 आ गया, मतलब ये अभी भी बता रहा है कि 83 नहीं तोड़ेगा। अगले दिन मार्केट आया 8538, प्रीमियम जितना था उससे बहुत ज्यादा ये ऊपर गया नहीं है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट नाउ हैज बीन रिड्यूस 43 लाख, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ गया है अब 8600 पे। कैन यू सी दिस माय डियर फ्रेंड? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दिस इनडायरेक्टली शोज दैट नाउ मार्केट कैन टेस्ट न्यू रेंज। अब 8600 तक बाजार जा सकता है ऊपर की साइड में, लेकिन नीचे की साइड में 83 एकदम फुल ओपन इंटरेस्ट के साथ बैठा हुआ है, तो मार्केट को यही रहना चाहिए। फिर अगला दिन मार्केट वापस रिवर्स आ गया, कैन यू सी दिस? और फिर से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 85 पे ही चल रहा है। पुट के अंदर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 83 पे ही चल रहा है। अगला दिन मार्केट 8476, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फिर से 85 पे ही है। अब 85 पे तो ये बोल रहा है 8550 से ऊपर ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी एकदम नजदीक आ रही है। और नीचे के अंदर में अब 8400 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। उसका इनडायरेक्ट मीनिंग अब 83 की जरूरत नहीं है, अब 84 से भी नीचे नहीं जाएगा बाजार। और 84 का मान लो 50-60 रुपए का प्रीमियम होगा तो 8350 के नीचे नहीं जाएगा। मार्केट 8496, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहीं पे ही है, और ये रेजिस्टेंस एकदम अच्छे से प्रूव कर रहा है। और नीचे में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब 84 पे है, तो मार्केट शुड रिमेन बिटवीन 84 85, 50 पॉइंट प्लस माइनस। और ये मेच्योरिटी यहीं पे ही थी, तो ये 27 की मेच्योरिटी आ गई। यू गॉट दिस? या मिस्टर प्रसाद, अपन ने अभी तक जो डिस्कशन किया ना उसके अंदर में अपन ने यही पॉइंट को समझा कि जहां पे भी कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था मार्केट का वो रेजिस्टेंस था, और जहां भी पुट के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट थे मार्केट के वो सपोर्ट लेवल थे, और उस रेंज के बीच में मार्केट चल रहा था। और जैसे ही मार्केट ने रेंज को तोड़ा 8489 और 8538 हुआ, तो आप देखोगे तो आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी कॉल का शिफ्ट होना शुरू हो गया था।
और यहाँ पे भी वो 8489 वाला 85 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, तो एक साथ में 86 87 आ गया और बाजार में 85 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा हो, ऐसा सिचुएशन आने नहीं दिया उसने। यू गॉट दिस? सो बाय दिस वे you can understand or you can get indication. I told you earlier also that we will get indication that where the market should remain between. So market इस रेंज के बीच में रहना चाहिए। और अब इसके बीच में आप ये समझ सकते हो, या जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, यस, तो अब आप इसके बीच में ये समझ सकते हो कि भाई मार्केट इन दोनों के बीच में रहेगा, ये क्लियर हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर ये रेंज बहुत दूर दूर की हो तो आपको दूर के ऑप्शन बेचने चाहिए। थैंक यू संजीव जी। और यदि वो रेंज बहुत नजदीक हो तो आप नजदीक के ऑप्शन को भी रिस्क ले सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं वो समझाता हूँ, आप समझना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि जब भी मार्केट ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले लेवल को तोड़ने लगेगा ना, तो वहां पे उसको बहुत सप्लाई मिलने वाली है और वो वापस रिवर्स आने वाला है। मार्केट यहाँ पर 8538 आया, वापस रिवर्स आ गया क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इधर ही खड़ा था। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे रिस्क कम लेनी है तो जहाँ पे मार्केट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा होना, उससे भी एक स्ट्राइक या दो स्ट्राइक दूर का ऑप्शन बेचना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? फॉर एग्जाम्पल 8500 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो आप 86 या 87 का बेचो, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। क्योंकि जब भी मार्केट 85 को क्रॉस करने लगेगा, आपको तो 87 के बाद लॉस होने वाला है। 85 को क्रॉस करने लगेगा तो तुरंत सप्लाई आएगी वहां पे। तो या तो ये ओपन इंटरेस्ट कटेगा और कट के ऊपर शिफ्ट होएगा। अगर कट के ओपन इंटरेस्ट ऊपर शिफ्ट होए तो आपको भी आपकी स्ट्राइक को शिफ्ट कर लेने का, और या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो पहले तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को कटना पड़ेगा, उसके बाद आपका नंबर लगेगा। आर यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड? तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाईएस्ट स्ट्राइक पे आप खड़े रहो। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो जहाँ पे हाईएस्ट स्ट्राइक का मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्राइक, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, उससे भी एक स्ट्राइक दो स्ट्राइक दूर का बेचो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, कैन दिस फंडा बी यूज फॉर इंडिविजुअल शेयर लाइक SBI, ऑरोबिंदो एक्सेट्रा? तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ये टेंशन वाला है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड ओपन इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे ज्यादा लोगों के व्यू होते नहीं है। तो जो स्टॉक या जो ऑप्शन बहुत ज्यादा लिक्विड हो, वहां पर आप कर सकते हो। SBI लिटिल बिट बता सकता है, बैंक निफ्टी इज गुड, पर इंडेक्स जो है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी, वहां पर तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा। और इनफैक्ट मैं अगर आपको एक और चीज बोलूं, जिसको बोल सकते हैं अपन सेकंड फिल्टर। सेकंड फिल्टर इज व्हाट? आप यहाँ पे, एक मिनट, आई यूज टू सेल बैंक निफ्टी ITM, दैट इज गुड, दैट इज अप टू यू मिस्टर प्रसाद, एंड दैट इज गुड। पर यहाँ पे मैं ये पॉइंट डाल रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको निफ्टी का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहिए और ये आइडिया निकालना चाहिए कितना % ऊपर का सपोर्ट है नीचे का और कितना % ऊपर का रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी में भी ये का यही चेक करना चाहिए। और दोनों के दोनों अगर सेम इंडिकेशन दे रहे हो लगभग परसेंटेज टर्म्स में भी, तो आपको और ज्यादा श्योर हो जाना चाहिए कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो ब्रेकआउट दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि मैं रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा हूँ या एकदम ऊपर की रेजिस्टेंस में खड़ा हूँ। और जो निफ्टी है वो दिखा रहा है अभी भी बहुत रेंज बाकी है ऊपर की। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन खड़ा है, यहाँ पे अभी भी कुछ ट्रिकी है, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है आपको आंसर ना मिले। तो आप दोनों की जो OTM रेंज होंगी ना, उसको प्रिफर करो, दैट विल मेक सेंस। पर मैं बहुत श्योर हूँ, अगर आपके पास फिनटेस्टर है, आप इस तरीके से टेस्ट करोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 90% टाइम एक्यूरेसी दिखने वाली ही है। जैसे अभी अपन ने देखी ना, दैट इज वाई आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आप कोई सा भी मंच चूज करो, वी विल गेट द आंसर। डन? तो दिस वॉज द क्वेरी ऑफ मिस्टर प्रसाद। एनीबडी एल्स कि हमको और क्या करना चाहिए? अच्छा, आप लोग को मैं एक पॉइंट और साथ साथ में बताना चाहता हूँ, डेल्टा न्यूट्रल का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। अभी थोड़े टाइम पहले अपन ने किसी एक स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहे थे, तो मैं उसको एक शॉर्ट गामा के साथ में जोड़ रहा हूँ। शॉर्ट गामा, ये मैंने वहां पे भी आपको पहले कोर्स के अंदर में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 8000 का स्टॉक है,
20% की मान लीजिए वॉलेटिलिटी चल रही है और अपन यहाँ पे हर 50 पॉइंट पे मैंने 8000 के कॉल 1000 क्वांटिटी बेचे हैं। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे एक्सपायरी गलत दिया। एक मिनट, एक नया ओपन करते हैं। शॉर्ट गामा 1 डाल देता हूँ मैं, एक नया 2 डाल दिया। चलो, और अब यहाँ पे मैंने 8000 वही 20% 12 अक्टूबर, और यहाँ पे मैच्योरिटी मैंने डाल दी 29 अक्टूबर मान लीजिए। और अब अपन 8000 का कॉल 1000 क्वांटिटी बेच रहे हैं तो 137.75 का प्रीमियम दिखा रहा है ये। और 8000 का पुट भी मैं 1000 क्वांटिटी बेच रहा हूँ तो ये भी 137.75 में गया। मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट गामा का ट्रेड किया माय डियर फ्रेंड। यस और नो एवरीवन एवरीवन एवरीवन? वेरी गुड। शॉर्ट गामा का ट्रेड किया है तो मेरा थीटा लॉन्ग होना चाहिए। यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मेरा थीटा लॉन्ग चल रहा है। ओके, अच्छा उसके बाद में थीटा मेरा लॉन्ग है, मेरे को यहाँ पे गामा शॉर्ट है। गामा शॉर्ट है मतलब मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा तो मैं डेल्टा शॉर्ट होऊंगा, प्राइस को घटाऊंगा तो मैं डेल्टा लॉन्ग होऊंगा। लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये डेल्टा करना जरूरी है क्या, क्योंकि डेल्टा करते हैं तो हमको बहुत पैसा लगता है। अब आपको समझना होगा कि डेल्टा करना कितना जरूरी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 50-50 पॉइंट के 2-3 मूवमेंट लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये F7 किया, 50 पॉइंट का मूवमेंट प्लस किया तो मार्केट 8000 की जगह 8050 हो गया। कैन यू सी दिस माय डियर फ्रेंड? 8050 हो गया तो मेरा 132 का डेल्टा शॉर्ट हो गया। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई 132 आप बाई करो। तो मैं सिंथेटिक फ्यूचर की जगह यहाँ पे शॉर्ट में करना है तो मैं इंडिविजुअली फ्यूचर के थ्रू एक बार फास्ट डेल्टा न्यूट्रल करता हूँ। तो मैंने 130 फ्यूचर 8050 में बाई कर लिए। करना पड़ेगा ना, यस और नो? अगर डेल्टा न्यूट्रल करना है तो मुझे, मेरा 132 का डेल्टा शॉर्ट था तो मैंने 130 का फ्यूचर लॉन्ग कर लिए। ओके, मार्केट और थोड़ी देर बाद में वापस और 50 पॉइंट बढ़ गया। 50 पॉइंट बढ़ करके मार्केट हो गया 8100। 8100 हो गया तो मैं फिर से डेल्टा 112 आउट हो गया। अगेन मैंने यहाँ पर फ्यूचर बाई किए तो अब मेरे को 110 फ्यूचर बाई करने को आएंगे 8100 में। ये मैंने बाई कर लिए। अभी मेरे को लॉस चल रहा है 6620 का। थोड़ी देर हुई वापस मार्केट और 50 पॉइंट बढ़ गया, और 50 पॉइंट बढ़ गया, मैं वापस डेल्टा शॉर्ट हो गया 108। फिर से मुझे फ्यूचर बाई करने पड़ेंगे तो मैंने 108 की जगह 110 फ्यूचर बाई कर लिए 8150 में। और फाइनली मार्केट 50 पॉइंट और ऊपर आ गया 8200। और अभी मैं कितना लॉस में चल रहा हूँ? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, कितना लॉस चल रहा है मुझे अभी? वेरी नाइस संजीव जी, वेरी गुड। कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कितना लॉस चल रहा है? वेरी नाइस मिस्टर प्रसाद, वेरी गुड। कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड विजय जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी नाइस नितेश जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो लगभग मुझे 11860 का लॉस हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैंने ये डेल्टा नहीं किया होता, डेल्टा अगर नहीं किया होता तो क्या होता? तो मैंने ये जितने भी डेल्टा के ट्रेड मारे हैं वो मैं हटा देता हूँ। मैंने ये डेल्टा नहीं किया होता, ये नहीं किया होता, ये नहीं किया होता तो मेरे खाली कॉल पुट बिके हुए होते। तो वो 11000 की जगह पे मुझे कितने का लॉस हो रहा होता? मुझे 47,000 का लॉस होता। हालांकि इसमें ये प्रॉब्लम है, आप ये कह सकते हो कि सर वो तो तब जब मार्केट वन साइडेड चले। अगर मार्केट अभी रिवर्स आ जाता, वापस रिवर्स आता मतलब 50 पॉइंट टूटा बाजार, तो 50 पॉइंट टूटते ही मैं 108 का डेल्टा पे आ गया, वापस 108 के डेल्टा लॉन्ग पे आ गया। तो मुझे वापस ये डेल्टा न्यूट्रल करवाने के लिए मुझे फ्यूचर को शॉर्ट करवाता। तो जो 110 फ्यूचर मैंने 8150 में बाई किए थे वो अब मुझे 8100 में वापस सेल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, वापस बाजार और टूट गया, फिर से टूट गया और मैं वापस डेल्टा लॉन्ग हो गया। मुझे वापस डेल्टा को न्यूट्रल करने के लिए फिर से फ्यूचर शॉर्ट करने को आ गए। 110 फ्यूचर मैंने शॉर्ट किए, जो मैंने 8100 में शॉर्ट बाई किया था वो मुझे अब 8050 में शॉर्ट करने को आ रहे हैं। तो मुझे वापस लॉस हो गया और थोड़ी देर बाद में फिर से बाजार और टूट गया, बाजार वापस टूट गया, फिर से वापस जहाँ बाजार था वहीं पे आ गया 8000 का। 8000 पे मेरा डेल्टा फिर से आउट है, फिर से मुझे 110 बाई करने को, शॉर्ट करने को आएंगे। 110 मैंने वापस शॉर्ट किए,
8,000 पे और मुझे टोटल मार के 17,500 का लॉस हो गया। लेकिन मुझे ये समझना है कि वन साइडेड मार्केट जाए तो वो 47,000 का लॉस लेना ज्यादा बेटर है या ये 17,500 का लॉस लेना ज्यादा बेटर है। मार्केट 200 पॉइंट प्लस गया और मार्केट 200 पॉइंट वापस माइनस आ गया अगर एक दिन में, तो जाके आपको 17,500 का लॉस हुआ। उसमें से भी अगर आप एक दिन निकल जाए इतना करने पे भी, तो एक दिन का थीटा तो मिल जाएगा आपको। तो एक दिन अगर मैं निकाल देता हूँ टाइम प्लस 1 करता हूँ तो यही 17,500 वाला लॉस आपका 9,000 पे आ गया। अगर एक दिन और निकल जाता है तो यही 9,000 का लॉस आप 780 पे आ गया। मतलब 200 पॉइंट बाजार बढ़े और 200 पॉइंट बाजार वापस टूट जाए और अगर उतने में 2 दिन निकल जाए तो भी आप न्यूट्रल पे हो माय डियर फ्रेंड। लेकिन यदि बाजार वन साइडेड चला जाता ना तो ये 47,000 को वसूल करने में आपका लाइफ निकल जाता। आर यू गेटिंग दिस? तो कोई भी तरीके से डेल्टा को न्यूट्रल नहीं करना इज वेरी डेंजरस। कोई भी तरीके से अपन है ना एक काम करते हैं, मेरे पास अब है ना अपन कोई एक स्ट्रेटेजी को अपन टेस्ट करते हैं, ठीक है? और स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के क्या रूल बनाने हैं मुझे ऐसा रूल चाहिए जिसमें आपका हेल्प चाहिए और आई एम वेरी श्योर वो भी पैसा बनाएगा वापस। पहले व्यू और मंथ आप चूज करोगे, आपको जो मंथ चूज करना हो ना आप चूज करो, क्योंकि अब नाउ आई एम योर फ्रेंड। तो मुझे ये घबराहट नहीं है कि मैं दिखाऊंगा डेटा और उस डेटा में प्रॉफिट नहीं आया तो क्या होगा। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू फाइट विथ रियलिटी। तो रियलिटी के साथ में अपने को फाइट करना है ना, तो अपन एक रूल कर रहे हैं। रूल ये है कि मैं अपन है ना एटीएम ऑप्शन को सेल करेंगे। ओके, एटीएम ऑप्शन को सेल करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जितने का स्टेटस सेल हुआ उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसका हेज ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 करके उस स्ट्राइक का बाई हेज, और उसके बाद में अपन कंटिन्यूअसली डेल्टा न्यूट्रल करेंगे। डन? ये अपन करते हैं और करके देखते हैं कि अल्टीमेटली हमारे साथ क्या हुआ। आर यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड? कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, यू गॉट दिस? चलो, तो आप मुझे बताओ कौन सा मंथ चूज करना है फास्ट। रितेश जी आप बोलो, कौन सा मंथ टेस्ट करें अपन? प्रसाद जी आपके लिए मैंने एक बार कर दिया है। ओके, रितेश जी का बोलना है जून 2014। बाप रे चलो लेट्स स्टार्ट। सबको क्यों इतना पुराना पुराना डेटा में मजा आता है? अभी अपन वही टेस्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जून 2014, 2014 जून, 2 जून इज मंडे, अपन ने 2 जून ले लिया। ओके, अच्छा विजय जी का जैन 2015 देखते हैं, अगर अपन टाइम मिलेगा ना तो अपन और भी चीज को देखेंगे। पहले अपन इसको देखते हैं। यहाँ पे मार्केट वॉच के अंदर में इतना सारे कॉलम की जरूरत नहीं है अपने को। बटरफ्लाई नहीं चाहिए, कैलेंडर नहीं चाहिए, ओपन इंटरेस्ट नहीं चाहिए, पीसीपी नहीं चाहिए, वॉल स्प्रेड नहीं चाहिए, स्टेटस चाहिए, बस इतने से अपना काम हो जाएगा। तो जून 2014 की मेच्योरिटी के लिए 2 जून को मार्केट था 7370। कैन यू सी दिस? कम ऑन। ओके, 7370। अच्छा, यहाँ पे एट द मनी 7400 है। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ ज्यादा बेटर वे में काम करने के लिए। हाँ, एक मिनट पहले उसके लिए मुझे या जस्ट अ सेकंड फ्रेंड। हाँ यस, अब मैं ना क्या कर रहा हूँ, इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे स्नैपशॉट भी इनके इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि वो स्नैपशॉट अपने को हेल्प करेंगे। तो ये प्रिंट स्क्रीन और ये प्रिंट स्क्रीन मैंने यहाँ पे रख दिया। तो जब आप अपने यहाँ पे आपके पास ये एक्सेल जाएगा तो आपके पास ये प्रिंट स्क्रीन भी आते रहेंगे। ओके, अब इस प्रिंट स्क्रीन में अपन 7400 का कॉल पुट बेचेंगे। यस और नो? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। अच्छा, कितने का स्टेटल वैल्यू? स्टेटल वैल्यू इज 229 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 460। 460 तो 500 पॉइंट का ओटीएम हेज ले लूं, चलेगा? 500 पॉइंट हेज
चलेगा माय डियर फ्रेंड्स? कम ऑन, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो 7400 का कॉल पुट अपन सेल करते हैं और 500 पॉइंट का अपन हेज ले लेते हैं। तो चलो जो भी होगा देखेंगे उसके बाद में। तो अब मैं यहाँ पे इसको सिमुलेशन में जाता हूँ। सिमुलेशन में वापस मैंने सिलेक्ट कर लिया जून 2 में यहाँ पे 7400 और 6900 पुट एंड 7900 कॉल, यस और नो? तो 7400 का कॉल ये मैं F2 1000 क्वांटिटी बेच देता हूँ। 7400 का पुट F2 1000 क्वांटिटी बेच देता हूँ। यहाँ पे कॉल में 1000 क्वांटिटी बाई कर लेता हूँ। पुट बाई किए 69 के और 79 के कॉल मैंने 1000 क्वांटिटी बाई किए। यस और नो एवरीवन? यू गॉट दिस? इतना समझ में आया? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने क्या किया? एट द मनी स्टेटस बेचा है। 6900 का पुट मैंने 1000 खरीद लिया हेज में और 79 का कॉल मैंने 1000 खरीद लिया हेज में। डेल्टा मेरा 38 का आउट है। ओके, और इसका मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया। प्रॉफिट लॉस अभी मेरा नील है और इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो एक स्नैपशॉट और आ गया। अब उसके बाद अगले दिन में क्या हुआ? तो यहाँ पे मेरा डेल्टा ऑलमोस्ट 38 है, तो न्यूट्रल है। 50 से आगे जाएगा ना तो अपन डेल्टा को न्यूट्रल कर डालेंगे। तो ये मैंने इसको डन किया। 7370 वाला मार्केट अगले दिन 7422 हुआ। मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कैन यू सी दिस? ये मत समझना प्रॉफिट ही होगा क्या, पर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके ओके, और मेरा डेल्टा जो है वो 94 का आउट है। मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ रख दिया और अब मैं डेल्टा को न्यूट्रल कर देता हूँ। तो डेल्टा को न्यूट्रल करना, डेल्टा मेरा शॉर्ट है, तो मैं यहाँ पे कॉल मुझे बाई करने को आएंगे तो F1 100 मैंने बाई किए। पुट मुझे बेचने को आएंगे F2 100 मैंने बेचे। मेरा डेल्टा न्यूट्रल हो गया। यस और नो? समझ में आ रहा है? एवरीबडी हैव टू रिप्लाई मी, एवरीबडी। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा इसमें कि भाई अगर आपको देखो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है ये चीज को करने का। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, द ऑब्जेक्ट टू डिस्कस दिस स्ट्रेटेजी इज दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंस to trade in options number 1. Secondly, either you will feel that my profit has increased or loss has reduced. Are you getting this? आपको या तो ये लगेगा मेरा प्रॉफिट अच्छा हुआ या आपको ये लगेगा मेरा लॉस घटा। तो हर तरीके से आपको इसमें अच्छा फील होने वाला है। फिर भी चेक करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। चलो अगेन मैंने डेल्टा को न्यूट्रल कर दिया। फिर से मैं टाइम प्लस 1 दबाऊं ना, तो मैंने फिर से टाइम प्लस 1 दबाया। टाइम प्लस 1 दबाया, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 17,590। मेरा डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही चल रहा है। यस और नो? फिर से मैंने इसका प्रिंट स्क्रीन लिया, प्रिंट स्क्रीन को यहाँ पे रख दिया आपके रेफरेंस के लिए। ओके, उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे अब डेल्टा कुछ करने को आया ही नहीं, तो कुछ जरूरत ही नहीं है। फिर से टाइम प्लस 1, 4 जून की जगह 5 जून। अच्छा, एक दिन पहले नीचे लेके जाऊँ वापस। 7417 वाला मार्केट 7498 हुआ, मतलब लगभग 80 पॉइंट मार्केट बढ़ा। 17,000 वाला प्रॉफिट 7,000 ही रह गया। डेल्टा मेरा 190 आउट हो गया। इसका मैं प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। प्रिंट स्क्रीन ले लिया मैंने और अब मुझे डेल्टा न्यूट्रल करने को आएगा कि नहीं आएगा? कमॉन कमॉन, डेल्टा न्यूट्रल करना है कि नहीं करना है? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आई हैव टू न्यूट्रल दी डेल्टा नो। 190 का डेल्टा मेरा आउट है। वेरी नाइस। तो अपन डेल्टा को न्यूट्रल करते हैं। तो डेल्टा को न्यूट्रल करना तो क्या करना पड़ेगा? कॉल मुझे बाई करने पड़ेंगे। तो F1 200 कॉल बाई किए, F2 200 कॉल पुट बेचे। डेल्टा मेरा न्यूट्रल हो गया। यस और नो एवरीबडी? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू गाइज आर वेरी स्मार्ट। हाँ, वेरी नाइस। चलो फिर से अगला दिन दबाते हैं टाइम प्लस 1। अभी देखो मैंने 7400 का कॉल पुट बेचा हुआ, मार्केट 75 गया। फिर टाइम प्लस 1 किया। अगले दिन मार्केट 7599
दैट मीन 7600 हो गया मार्केट। यस और नो? कमॉन कमॉन कमॉन, यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। और अभी आपको क्या हो रहा है, आप 1085 के प्रॉफिट में हो अभी भी। आपने कितने में ये कॉलपुट बेचे थे? आपने ये कॉलपुट बेचे थे 116 और 80। यू हैव sold 7400 call and put at 116 plus 80. So that will 196. You have purchased hedges. कितने में परचेज किए थे? तो वो hedges आपने परचेज किए थे 5.40 और 11। तो 5.40 plus 11, so indirectly 16. So ultimately you have got 180 in your pocket. 7400 की पोजीशन में आपको 180 रुपीज मिले। मार्केट चल रहा है 7600 एंड स्टिल यू आर हैविंग द प्रॉफिट ऑफ 1000। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया होता तो अभी आप लॉस में आ चुके होते। यस और नो? अगर आपने डेल्टा नहीं किया होता तो अभी आप लॉस में आ चुके होते। यस और नो? कमॉन 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 एवरीवन एवरीवन एवरीवन, क्योंकि मिले ही आपको 180 थे। मार्केट 200 पॉइंट तो बढ़ चुका है और अभी टाइम वैल्यू तो इसके अंदर और है। ये 231 और 34 265 की जोड़ी चल रही है। यस और नो? और आपने बेची थी 196 में, मिले थे 180। वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, आपको अपने आप को एप्रिशिएट करना है इसके लिए कि आप क्या कर रहे हो अब। ओके चलो, अब वापस मुझे डेल्टा न्यूट्रल करने को आ रहा है। मेरे को फिर से डेल्टा न्यूट्रल करना चाहिए। तो पहले तो मैंने इसका स्नैपशॉट लिया है क्या? नहीं लिया होगा शायद। मैं स्नैपशॉट रख देता हूँ, यहाँ पे स्नैपशॉट रख दिया। अब डेल्टा न्यूट्रल कर रहा हूँ तो डेल्टा 175 का डेल्टा न्यूट्रल करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे को कॉल बाई करने को आएंगे 175, पुट बेचने को आएंगे 175। डेल्टा हो गया न्यूट्रल। वापस अपन अगला दिन का टाइम प्लस 1 दबाते हैं। 7664 मार्केट हो गया 7664। अगेन मेरा डेल्टा आउट और मैं अभी 4000 रुपए के लॉस में हूँ। फिर से मैंने इसको प्रिंट लिया, यहाँ पर मैंने उसको प्रिंट स्क्रीन रख दिया। अगेन मुझे डेल्टा न्यूट्रल करने को आ रहा है 60 का। तो अपन डेल्टा न्यूट्रल करते हैं 50। F1 50 बाई F2 50 सेल। डेल्टा हो गया मेरा न्यूट्रल। अगेन वापस मैं टाइम प्लस 1 दबाता हूँ। टाइम प्लस 1 दबाया, 9 जून की जगह 10 जून। मार्केट 7675 ऑलमोस्ट उधर ही है। कल एक दिन का थीटा मिल गया। इससे पहले वाले दिन 7664 था, 64 की जगह 7675 हुआ। 8-9 पॉइंट बढ़ा, लेकिन थीटा मिल रहा है आपको। तो थीटा मिला, अब आप 2000 रुपए के प्रॉफिट में आगे हो। आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ओके चलो, इसका मैं प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ। प्रिंट स्क्रीन लिया, यहाँ पे रख दिया मैंने इसको। और अब मैं वापस इसका डेल्टा न्यूट्रल करता हूँ। 75 का डेल्टा आउट है, 75 का डेल्टा न्यूट्रल कर देते हैं। F1 75 बाई F2 75 सेल पुट। डेल्टा हो गया न्यूट्रल। अगेन वापस टाइम प्लस 1 10 जून की जगह पे अगले दिन जाते हैं 11 जून। 11 जून मार्केट 7622 एंड यू आर हैविंग द प्रॉफिट ऑफ 4643। डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है, 35 पॉइंट पे पड़ा है, तो कोई खास बात नहीं है। अगेन इसका प्रिंट स्क्रीन लिया, फिर से यहाँ पे आपने इसको रख दिया। फिर वापस आप नेक्स्ट डे पे गए तो टाइम प्लस 1। तो आप 11 जून की जगह 12 जून पे आए। मार्केट 7671। डेल्टा 39 का शॉर्ट है। मार्केट फिर से बढ़ा, डेल्टा आप थोड़ा शॉर्ट हुए। अभी आप 3153 के प्रॉफिट में हो और रेंज में बाजार चल रहा है मेरा, तो वहीं पे ही हूँ। डेल्टा कुछ खास आउट नहीं हुआ है तो चलने दे रहा हूँ। अगेन टाइम प्लस 1 12 जून की जगह 13 जून। 76561 वाला मार्केट 7560। आप 100 का डेल्टा लॉन्ग हो गए हैं। 8000 रुपए का भी आपको प्रॉफिट चल रहा है। आपको 100 का डेल्टा न्यूट्रल करना पड़ेगा। यस और नो? कम ऑन, यस और नो? वेरी नाइस। तो कर देंगे अपन न्यूट्रल। तो यहाँ पे F2 100 बेचे और पुट मैंने 100 बाई कर लिए। डेल्टा न्यूट्रल हो गया। अगेन वापस टाइम प्लस 1 दबाते हैं। 13 जून की जगह 14 जून। अच्छा 14 15 छुट्टी होगा, 16 जून डायरेक्ट आया। 16 जून मार्केट 7552। आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अभी। और अब आप मार्केट के इस रेंज के अंदर में खड़े हैं। 36 का डेल्टा आउट है, तो डेल्टा कुछ खास ज्यादा आउट नहीं है, आप आराम से खड़े रह सकते हैं। इसका स्नैपशॉट मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसका स्नैपशॉट रख दिया। वापस अगले दिन गए, फिर से टाइम प्लस। व्हेन आर वी गोइंग टू बुक प्रॉफिट?
लॉजिकली आपको कब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हैं, या तो एक क्या होता है मिस्टर प्रसाद, ये क्वेश्चन क्या है मिस्टर प्रसाद का क्वेश्चन है सर प्रॉफिट कब बुक करना है इसमें। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो, या तो आप अपने हेजेस को भी नजदीक ला सकते हो तो रिस्क को कम कर सकते हो, नंबर 1। अच्छा, ब्रोकरेज वगैरह कोई बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होता है, आप बाद में लॉट साइज वगैरह गिनना दिखता होता है, ऐसा फील हो रहा होता है कि अरे मैं, आप डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए कितना डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हो, आप समझो कितना डेल्टा आउट हो रहा है। यहाँ पे 36 का आउट था, इससे पहले वाले दिन 100 का, तो 100 क्वांटिटी हुई, 1000 4000 क्वांटिटी आप पहले दिन ट्रेड कर लिए थे। यहाँ 40 का था, कुछ नहीं किया था आपने ट्रेड, यहाँ पे 35 का था, कुछ ट्रेड नहीं किया था आपने, यहाँ पे 75 आपने ट्रेड किए थे, तो आप बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो बहुत लंबा ब्रोकरेज नहीं लगने वाला माय डियर फ्रेंड। यस, व्हेन आर वी गोइंग टू, बिकॉज ब्रोकरेज अच्छा, बट इन बाइंग एंड सेलिंग, हाँ वही बाइंग एंड सेलिंग, कितना क्वांटिटी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वही मैंने बताया ना आपको, व्हाट इट। हाँ, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना एंड तक जाओगे। मेरा एकदम पॉइंट क्लियर है, जो लोग पीपल हु आर हैविंग लो रेट, लो रिटर्न प्रोफाइल should avoid last 7 to 10 days, and people having high risk high gain should trade over there। तो वो आपके ऊपर है माय डियर फ्रेंड, आपको लगता है मुझे रिस्क कम लेनी है तो भाई आप अवॉइड करो, आप लास्ट में मत करो, आप निकल जाओ और अगला मंथ में घुस जाओ। और अगर आप बोलते हो कि मैं एग्रेसिव हूँ, मुझे रिस्क लेनी है, तो आप इसमें और आगे चलो, तो अपन अब उसको आगे चलाते हैं। अभी डेल्टा आपका न्यूट्रल ही है तो आपको कोई चिंता नहीं है, आप आगे चलाओ टाइम +1, तो 16 की जगह 17, मार्केट हो गया 7661, एक ही दिन में आपका जो प्रॉफिट था पूरा निकल गया। 225 का डेल्टा आपका शॉर्ट है, स्क्रीनशॉट में इसका ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट रख दिया, क्योंकि हाई रिस्क हाई गेन है तो आपको इतना फ्लक्चुएशन तो प्रॉफिट लॉस में दिखने वाला है। अगेन F1 225 मैंने डेल्टा बाई कर लिया, 225 मैंने पुट शॉर्ट कर दिया, मेरा डेल्टा हो गया न्यूट्रल 748 पे। अगेन टाइम +1, अब मैं 17 जून की जगह 18 जून, मार्केट आ गया 7556, आपको अभी 5926 का लॉस चल रहा है, 177 का आपका डेल्टा आउट है। स्नैपशॉट में यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको स्नैपशॉट को मैंने यहाँ सेव कर दिया। अब मैं फिर से यहाँ पे डेल्टा को न्यूट्रल कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग दिस नो माय डियर फ्रेंड? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगेन अब मैं यहाँ पे F2 175 बेच रहा हूँ, F1 175 खरीद रहा हूँ, मेरा डेल्टा न्यूट्रल हो गया है, 5900 का मुझे लॉस चल रहा है। अगेन टाइम +1, 18 जून की जगह पे मैं 19 जून पे जा रहा हूँ। 19 जून डेल्टा मेरा मार्केट 7557 है, डेल्टा 70 का आउट है, मैं 6000 के प्रॉफिट में आया। अगेन मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया, यहाँ पर इसको मैंने रख दिया और इधर मैं अब डेल्टा न्यूट्रल करता हूँ, तो फिर से मैंने 75 का डेल्टा न्यूट्रल किया, तो F1 75 बाई किए, F2 75 बेचे, डेल्टा मेरा न्यूट्रल हो गया है। अगेन मैं 19 जून की जगह वापस टाइम +1 करता हूँ। 19 जून से मैं आया 20 जून पे, 20 जून पे मैं फिर से 20,000 के प्रॉफिट पे आ गया हूँ, मार्केट 7530 चल रहा है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आए हैं वापस। इफ दिस हेजिंग और न्यूट्रल वी कंपेयर विथ नेकेड ऑप्शन राइटिंग एंड एवरेजिंग, हाउ रिजल्ट विल डिफर सर। ओके, अपन है ना इसको उससे भी चेक कर लेंगे अभी, है ना। थोड़ा सा फास्ट चलाते हैं ताकि मैं अगले 10 मिनट में मीटिंग भी कंप्लीट कर सकूं। या तो अगेन मैंने यहाँ पे ये 20,000 का था, इसका स्नैपशॉट ले लिया और यहाँ पे मैंने रख दिया इसको। फिर अपने वापस 20 जून की जगह वापस 21, मार्केट 67 का डेल्टा आउट है, मैं 7500 पे हूँ, मुझे 39,000 का प्रॉफिट है, 39,000 का प्रॉफिट है। और यहाँ पे मेरा 70 का डेल्टा आउट है, 67 का डेल्टा आउट है, तो मैं फिर से 75 का डेल्टा न्यूट्रल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉल को F1 75 बाई कर लिया, पुट को 75 बेच दिया, मेरा डेल्टा न्यूट्रल हो गया है। डेल्टा न्यूट्रल है, अब मैं वापस टाइम +1 दबाता हूँ, 23 की जगह 24, अभी मैं 26,000 के प्रॉफिट में हूँ, मार्केट 7592 हो गया, फिर से 200 का डेल्टा आउट, प्रिंट स्क्रीन लिया, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अगले दिन मैंने वापस चलाया, 200 का डेल्टा न्यूट्रल किया, पहले 200 कॉल बाई कर लिए, पुट 200 बेच दिए, डेल्टा मेरा न्यूट्रल हो गया है, 27,000 का प्रॉफिट है। अगेन टाइम +1 किया, मार्केट हो गया 7492, मुझे 41,000 का प्रॉफिट है,
यहाँ पे मैंने उसका प्रिंट स्क्रीन लिया और ये प्रिंट स्क्रीन मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अगेन मैंने टाइम प्लस इसको मैंने डेल्टा न्यूट्रल किया। डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए कॉल मैंने 100 बाई किए, पुट मैंने 100 बेचे, डेल्टा मेरा न्यूट्रल हो गया। और अगेन मैंने टाइम प्लस 1 दबाया, टाइम प्लस 1 दबाया। 26 अपन लास्ट डे आ ही चुके हैं और ये 41,000 का नेट आपको प्रॉफिट रहा। यू गॉट दिस? कम ऑन। आपने ये जो ट्रेड किया इसमें आपको इसमें 41,000 रुपये का नेट गेन बचा। डन। और कंटिन्यूसली आप डेल्टा न्यूट्रल करते गए। अब वापस इनका क्वेश्चन था कि अगर बिना न्यूट्रल किए हुए सर ये सब कुछ करते तो क्या होता। तो अपन फिर से इसको एक बार फिर से शुरू करते हैं। फिर से मैं सिमुलेशन पे जा रहा हूँ। फिर से मैंने 2 जून को सिलेक्ट किया। 7400, 7900, 6900 हैज लेना है कि नहीं लेना? हैज तो लेना है ना। और बिना हैज के करना है? नेकेड। ओके चलो, तो पहले इनको एक नेकेड देखना है, फिर अपन हैज के साथ का भी देखेंगे। F2000 कॉल बेचे, F2000 पुट बेचे और डेल्टा भी न्यूट्रल नहीं करना और इसको खाली ऐसे ही ओपन रखना है। तो इन्होंने ये ट्रेड मारा टाइम प्लस 1, 14,000 का प्रॉफिट। टाइम प्लस 2, 24,000 का प्रॉफिट। टाइम प्लस 3, 7,000 का प्रॉफिट। टाइम प्लस 4, 36,000 का लॉस। नेक्स्ट डे 78,000 का लॉस। आर यू गेटिंग दिस? देन टाइम प्लस 1, 35,000, 67,000। यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 10,000, 29,000। अगले दिन 50,000 का लॉस, 27,000 का प्रॉफिट, 39,000 का प्रॉफिट, 72,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, अगेन 34,000 का प्रॉफिट, 1,36,000 का प्रॉफिट और मेच्योरिटी पड़ गई। ये था अगर आप हेजिंग नहीं लेते हैं तो आपको इसके अंदर में देखना है कि क्या मेरे को बाजार के अंदर में जब हेवी लॉसेस आए थे कि 49,000 का लॉस था, 67,000 का लॉस था, 75,000 का, तो वो लॉसेस क्या मैं बेयर कर सकता हूँ? अगर बेयर कर सकता हूँ और अनलिमिटेड लॉसेस में मैं खड़ा रह सकता हूँ तो आप ऐसा ट्रेड करेंगे। और अगर मुझे अनलिमिटेड लॉसेस नहीं चाहिए तो मैं डेल्टा को न्यूट्रल करूंगा और मैं साथ में हेज लूंगा। ओके नाउ परफेक्टली करेक्ट, वेरी नाइस। तो यही है कि आप जितना रिस्क को कम करना चाहते, देखो ये ट्रेड तो मैं कभी भी हाँ ही नहीं बोलूंगा कि ऐसा ट्रेड करना चाहिए। क्या बहुत अच्छे से लॉजिक समझना। ये आपने ऐसा मंथ चूज किया जिस मंथ के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं आया। बाजार के अंदर में तो 600, 600, 700, 700 पॉइंट के मूवमेंट वाले मंथ भी है, यस और नो? तो आपने अगर लाख रुपया कमा लेते हो इसके अंदर में और एक ही मंथ में अगर आप 4 लाख वापस दे देते हो तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। ओके जस्ट गो ऑन एवरेजिंग इफ व्यू गोज अपोजिट। कभी भी मत करना मिस्टर प्रसाद। ओके नो बट कैन आई एवरेज देयर? आप एवरेज करने का लॉजिक क्या? आप कितना पैसा डालोगे बाजार के अंदर में और कितना पैसा आइडल फंड हाथ में रखोगे? आपने जो स्ट्रेटेजी हमने की ना यहाँ पे, ये जिसका एक्सेल में स्नैपशॉट लिया है, डे 1 पे भी उसका 20 लाख का मार्जिन था और डे एंड तक उसका 20 लाख का मार्जिन था। आप हमेशा ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन पे काम किए हो। तो एवरेजिंग आपको क्या पता है कितना एवरेज कर लोगे आप और कितना फंड रखोगे आप अपने पास? पहला में एवरेज किया 20 लाख आपने डाल दिए, अभी बाजार में लॉस आया, आप फिर एवरेज करोगे तो नया 20 लाख कहाँ से लाने वाले हो? गॉट इट? वेरी नाइस। अच्छा एक पॉइंट और, इसको भी देख लेते हैं, ये भी एक डिमांड है तो इसको भी मैं चला देता हूँ फास्ट। फिर से मैं एक नया सिमुलेशन चालू कर रहा हूँ इसी मंथ का। अब इस मंथ में इस बार का जो सिमुलेशन है इसमें हैज ले रहे हैं हम पर डेल्टा न्यूट्रल नहीं कर रहे हैं। तो 7400, 7900 और 6900 मैंने बाकी के स्नैपशॉट नहीं रखे हैं इसमें क्योंकि मुझे फास्ट चलाना है। 1000 बेचा, कॉल 1000 पुट बेचा, फिर से हैज लिया 1000 और पुट का भी हैज लिया और कॉल का भी हैज ले लिया 1000। ओके मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया। F2000 पुट मैंने 1000, कॉल मैंने 1000 बाई किए और पुट भी मैंने 1000 बाई कर लिए। ओके और यही मेरा डेल्टा वगैरह था और यहाँ पे अपन ने इसको शुरू किया। अब अगर मैं डेल्टा न्यूट्रल नहीं करता हूँ, मैंने हेज लिए है, तो कई लोग हैं जो हेज लेते हैं पर डेल्टा न्यूट्रल नहीं करते, तो उनका पे ऑफ कैसा होता है वो भी देखते हैं। 10,000 का प्रॉफिट फर्स्ट डे, तो आपको भी 10,000 का प्रॉफिट आया होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने भी तो फर्स्ट डे तो यही किया था ना ट्रेड, यस और नो? याद है ना? तो फर्स्ट डे का तो अपना भी यही सीन था, यही पोजीशन थी और
ये अपने को 10,450 का प्रॉफिट दिख रहा है और यही इस यहाँ पे स्नैपशॉट में दिख रहा है। अब अगले दिन मैंने डेल्टा न्यूट्रल, यहाँ 93 का डेल्टा आउट था तो अपने यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल किया था तो नेक्स्ट डे अपना जो प्रॉफिट लॉस था वो 17,000 था। अब यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल नहीं करता हूँ तो अगले दिन 17,000 की जगह 18,000 है, फिर उससे अगले दिन 200 का लॉस है। यहाँ पे अपने को उसके अगले दिन 7,000 का प्रॉफिट था। अब मैं आगे आगे चलाता जाता हूँ, फिर अगले दिन 36,000 का लॉस है, फिर अगले दिन 71,000 का लॉस है, 70,000 का लॉस, 37 का लॉस, 67 का लॉस, 2,600 का प्रॉफिट, 19,000 का प्रॉफिट, 55,000 का लॉस, 16,000 का प्रॉफिट, 27,000 का प्रॉफिट, 57,000 का प्रॉफिट, 92,000 का प्रॉफिट, 18,000 का प्रॉफिट, 1,20,000 का नेट प्रॉफिट लास्ट मेरा। तो आपको देखना है कि मुझे कौन सा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है और मैं क्या चाहता हूँ। व्हाट इज योर होमवर्क नाउ? जस्ट अ सेकेंड। नाउ योर होमवर्क इज you should test at least 18 months on past data in this manner. आप कम से कम 18 महीने टेस्ट करो। आप अलग अलग तरीके से टेस्ट करो। डेल्टा न्यूट्रल किया होता तो क्या होता, नहीं किया होता तो क्या होता, हेज लिए होते तो क्या होता, नहीं लिया होता तो क्या होता। एंड आई एम गिविंग यू दिस श्योरिटी कि आपका जो ऑब्जेक्ट था ना कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, यू विल गेट 100% कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट द ट्रेड, टू मैनेज द ट्रेड, एंड टू एग्जिट द ट्रेड। तीनों का तीनों लेवल पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको ये चीजों को अच्छे से ट्रेस करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, है ना। देखो मिस्टर प्रसाद, जहां तक क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, तो मार्केट के अंदर से आपको या तो पास डेटा वगैरह कहीं से उठाना होगा, जैसे एनएससी इंडिया वगैरह की साइट पर से, और अदरवाइज यू हैव टू, है ना, यू हैव टू डू बाय सम सॉफ्टवेयर और ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू दैट। तो आप वो आपको आपके एंड का काम है, वो आपको देखना होगा कि एज अ फैकल्टी दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना। थैंक यू। यस, और ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करेंगे, पर एटलीस्ट मुझे 5 to 10 डेज लगेंगे। 5 to 10 डेज इसलिए लगेंगे कि वी आर क्रिएटिंग वन न्यू ग्रुप, जो अपने पास स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, उस ग्रुप के साथ में ये शेयर रहेंगे। तो आपको उस प्रोसेस को करने में मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन को वो कंप्लीट होते ही, हो सकता है जल्दी हो जाए, तो हम लोग आपको जल्दी से ये वीडियो शेयर कर देंगे। डन। So again, thanks a lot. Thanks for coming here. Thanks for opting this webinar. Thanks for sparing time. हम लोग और कोशिश करेंगे हमारे जितने स्टूडेंट्स हो उनके लिए कुछ इसी तरह के वैल्यू एडिशन वाले और वर्कशॉप कंटिन्यूसली आए। कॉम्बिनेशन ऑफ पुट एंड कॉल रेशियो फंड ट्रेड, हाउ टू टेस्ट पास डेटा, हु विल सेंड। ओके, क्या नहीं समझा मैं, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पुट एंड कॉल रेशियो फ्रंट ट्रेड, how to test past data, will you send? आपको अगर past data टेस्ट करना है, what do you want? Hitesh ji, make it clear. Thanks a lot for compliment, Mr. Prasad. Thank you. Please keep one more practical session on some strategies that you use. Done, sir. We will do it very soon. हाँ, आप लोग आते रहिए। मीन्स मुझे तो उल्टा ये है कि कितने लोगों ने ये कोर्सेज किए हुए हैं, फिर भी मुझे 8-10 लोग ही आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो आप लोग आइए, डेफिनेटली वी विल डू, वी विल कंडक्ट दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप कंटिन्यूअसली। So once again, thank you. I am completing the meeting over here. Yeah, my number is 937471948. Okay, so you can call me. Okay, thank you. Thanks a lot. Thanks for the compliment. Thank you, sir. Thank you, Sanjeev ji. Thanks a lot. Thanks for the compliment. Thank you.